Hello, students. Good morning to all of you. This is Abhishek Agnihotri, your marketing teacher from Springdale College, Pilibhit. I welcome you in my YouTube channel, and today we are going to start Unit 2nd of Marketing for Class 12th. Okay, subject code is 812 Okay, so let us start. The unit name is price. We will learn that what is price, how pricing is important for a firm, and what are the factors which play an important role in setting a price. First, we will go through the meaning and importance of price. Price is one of the most important elements of the marketing mix. This is only element which generates revenue for an organization and determines its growth. Yes, you will observe that out of 4 P's of marketing mix, that is product, price, place and promotion, all the rest 3 P's are related to some expense, but price is the only P out of marketing mix which generate a revenue for an organization. The other three main elements of the marketing mix are product, place and promotion. A firm insecures a certain cost a firm incurs a certain cost to produce a product or service. किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को जनरेट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए कंपनी कुछ ना कुछ एक्सपेंस करती है, उसको कुछ ना कुछ कॉस्ट जनरेट होती है. द प्लेस एलिमेंट इज कंसर्न्ड विद द सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट थ्रू वेरियस चैनल्स. जो प्लेस हम लोगों का थर्ड पी है, वो हम लोगों का चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, जिसमें बहुत सारे इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होती हैं इन द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स. ओके, देयरफॉर some expenses there, like in choosing the sales method, payment to salesman, expense incurred on transporting product to place of selling. मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, उसका किराया भाड़ा देने में, उसकी ढुलाई देने में, लेबर की वेजेस देने में, इन सभी में कुछ ना कुछ एक्सपेंस बियर करना पड़ता है कंपनी को. द प्रमोशन एलिमेंट कंसर्न्ड विद द एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन of the firm's product leads to expenditure on different promotion and advertising media like TV and radio advertising, sample promotion, etc. So promotion is also the fourth P of marketing mix, which generate some cost for company. Okay, so company का इसमें भी कुछ ना कुछ खर्चा होता है. But if you will observe the second P of marketing mix, that was price, it always generates some revenue for the company, which is contrary to the rest of the 3 P's. Right price denote the level of price which can cover all these expenditure on the final product and bring some profit to the firm. सही प्राइस वो लेवल है जो प्राइस आप डिसाइड करते हैं जिसमें आपके बाकी के 3 पीज में जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो भी कवर अप हो और साथ में कुछ प्रॉफिट जनरेट हो. तो इस लेवल पे हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोगों का प्राइस सेट किया जाए. मीनिंग ऑफ प्राइस वी विल डिस्कस हियर. द टर्म प्राइस डिनोट्स मनी वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट. प्राइस का मतलब है किसी प्रोडक्ट की मनी के टर्म्स में या मॉनेटरी टर्म्स में कितनी वैल्यू है, दैट इज द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट. इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट कस्टमर पे टू द सेलर टू गेन बेनिफिट्स ऑफ हैविंग और यूजिंग द गुड्स और सर्विस. वो जो एक कस्टमर किसी कंपनी को या किसी सेलर को किसी प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करने के लिए पे करता है, दैट अमाउंट ऑफ मनी इज कॉल्ड price for the goods and service. In fact, it is marketers assessment of the value customers see in the product. So price indicate the money value which a buyer is ready to exchange for the purchase of certain goods or services.
तो हम लोग इससे ये आइडिया लगा सकते हैं दैट प्राइस वो लेवल है मनी का, जो वो वैल्यू मनी की जो कस्टमर रेडी रहता है पे करने के लिए किसी सर्विस के बदले में। ओके, इस पे लेकिन वो कितना मनी पे करने के लिए तैयार है, हाउ यू विल नो दैट? कस्टमर का आपकी सर्विस के बारे में क्या परसेप्शन है, वो उसकी वैल्यू को किस तरह से आंकता है, वो उसकी कितनी वैल्यू समझता है, उसके अकॉर्डिंग वो पे करने को तैयार होता है। सो इट इज़ अ very job for a marketer to identify that what is the value of the product in the eye of customer। एक कस्टमर की नज़र में आपके प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू है ये पता लगाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। ओके, so now we will move forward towards some important definitions of price। The definition of price according to Philip Kotler is also called the father of marketing। This definition you can see on the screen। Price is the amount of money charged for a product or service। किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बदले में जो अमाउंट मनी का आप कस्टमर से चार्ज करते हो वही आपका प्राइस कहलाता है। ओके, सिमिलरली अकॉर्डिंग टू स्टैंटन इज ऑल्सो अ मार्केटर who gave the definition related to price। According to Stanton, price is the amount of money needed to acquire some combination of goods and its accompanying services। प्राइस मनी का वो अमाउंट है जो जरूरी है किसी भी गुड्स और उसके साथ में मिलने वाली सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए। ठीक है, आप किसी गुड्स को एक्वायर करना चाहते हो, उसका पोजीशन चाहते हो या फिर उसका स्वामित्व तो चाहते हो, वो आपके पोजीशन में आ जाए, तो उसके बदले में आपको जो भी अमाउंट पे करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड द प्राइस। ओके, नाउ कमिंग टू सेकेंड डेफिनेशन, प्राइस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर बाय अ बिजनेस सेट्स द प्राइस at which it intends to sell its products and services। प्राइसिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एक बिजनेस अपने उस प्राइस के लेवल को सेट करता है जिस पे वो अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट को मार्केट में ऑफर करना चाहता है। ओके, रिमेंबर वन थिंग, on the above half we discussed the definition of price। in the second line it is the definition of pricing, so don't be confused here। okay, moving forward, it is the key variable in the firm's marketing plan। it plays a very important role in any of the marketing firm's operation while setting prices for its product, that is goods or services। the business takes into account various aspects of production listed below। प्राइस को सेट करने से पहले बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे प्रोडक्शन एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें एक कंपनी को ध्यान में रखना पड़ता है अपने प्राइस को सेट करने से पहले। ओके, सो दीज फैक्टर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। फर्स्ट फैक्टर इज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। yes, obviously if your supplier is providing the raw material at a higher rate, then the cost of producing that product will be automatically higher, so you will be supposed to put a low price in the market। ठीक है, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल ये कंप्लीटली आपके प्राइस को इफेक्ट करता है। द फर्म कंसीडर प्राइस at which it could acquire the goods and raw material to prepare final product to be sold in the market। a higher cost acquiring these implies a higher product price and vice versa। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, आप एक प्रोड्यूसर हैं, तो अगर आपको रॉ मटेरियल पीछे से सप्लायर कॉस्टली दे रहा है, देन ऑब्वियस सी बात है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट के प्राइस कैसे हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। ठीक है, सो प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल ऑलवेज हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सेकेंड फैक्टर विच हैव एन इम्पैक्ट ऑन प्राइस इज कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। if manufacturing cost is higher, the price of product will also be higher। अगर किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में या बनाने में ज़्यादा कॉस्ट इनकर हो रही है, दैट मीन्स
उसका प्राइस भी हायर हो जाएगा, वेयर एज लोअर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लीड्स टू द लोअर प्राइस. This cost includes the wages of labor, expenses on the power and other overheads during the manufacturing. अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आप देखेंगे उसमें जो आपके स्किल्ड वर्कर्स हैं, नॉन स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनके वेजेस, आपके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रनिंग एक्सपेंसेस और जो आपके टू एंड फ्रो वेजेस होते हैं वो सारे इंक्लूड होंगे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में. कुल मिला के आपके फाइनल प्रोडक्ट के प्रिपेयर होने में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, running expenses, those are a part of cost of manufacturing. So if cost of manufacturing is higher, then the price of product will go high. Okay, now coming to third factor, market condition. When market has positive sentiments, that is high demand for the goods and services because of high income and purchasing power of consumer, companies set higher prices of their product. अगर मार्केट में लोग आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं एंड दे आर रेडी टू पुट अ हाई अमाउंट फॉर परचेजिंग दैट प्रोडक्ट एंड द परचेजिंग पावर इज हायर, इन दैट केस द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स कुड बी रेज्ड इन द मार्केट. अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है देन यू कैन पुट अ हाई प्राइस फॉर योर प्रोडक्ट. ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके अपोजिट, व्हेन देयर इज डिप्रेशन एंड नेगेटिव सेंटिमेंट्स ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड इन द मार्केट. अभी आप देख सकते हैं कोरोना सिचुएशन की वजह से बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए हैं, बहुत सारे लोगों की अर्निंग डाउन हो गई है, बिजनेस हाउसेज आर ऑल्सो इन अ बिग लॉस. सो यू कैन सी दैट इन मार्केट देयर इज नॉट दैट मच परचेजिंग पावर इन द हैंड ऑफ कस्टमर. ओके, कस्टमर के हाथ में अभी बहुत ज़्यादा परचेजिंग पावर नहीं है. ही डोंट वॉन्ट टू स्पेंड दैट मच मनी ऑन परचेजिंग द प्रोडक्ट. So in that case the prices of product will be kept low. अभी आप देखिएगा आने वाले टाइम में, क्योंकि परचेजिंग पावर डाउन हो रही है कस्टमर की, तो प्रोडक्ट के प्राइसेस लो रखे जाएंगे, कई सारी स्कीम्स लॉन्च की जाएंगी टू स्टिमुलेट द डिमांड इन द मार्केट. मार्केट में डिमांड को बढ़ाने के लिए प्राइसेस को लो किया जाएगा. ओके, सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल विच यू कैन सी अराउंड यू. For example, automobile companies increase prices of car when there is a high demand and offer high discount when demand is low. आप ऑटोमोबाइल्स कार की बात करें तो जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड हाई होती है तो आप अपने कार के प्राइस को बढ़ा देते हैं एज अ मैन्युफैक्चरर. ओके, व्हेन योर डिमांड इज लो एंड पीपल आर नॉट रेडी टू बाय योर प्रोडक्ट, देन यू offer some heavy discounts on your product in order to stimulate the demand. डिमांड को बढ़ाने के लिए आप मार्केट में अलग अलग तरीके के डिस्काउंट ऑफर्स लॉन्च करते हैं. नेक्स्ट फैक्टर विच affect the price is competition in the market. Yes, obviously, if there is no other firm in the market offering similar product, या फिर हम कह सकते हैं कि जब किसी प्रोडक्ट का मार्केट में कोई ऑप्शन नहीं होता, सो देयर इज अ मोनोपोली ऑफ दैट प्लेयर इन द मार्केट. जब कोई मोनोपोलिस्टिक फर्म काम कर रही है, कंपनी काम कर रही है, तो वो अपने प्राइसेस को हाई रख सकती है. ओके, सपोज यू आर अ प्रोड्यूसर ऑफ अ गुड वेयर देयर इज नो कॉम्पिटिशन इन द मार्केट. आप ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका कोई ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल नहीं है एंड देयर इज नो अदर प्लेयर इन द मार्केट हु इज प्रोड्यूसिंग द सेम गुड्स. कोई और उसे प्रोड्यूस भी नहीं कर रहा है. सो यू आर अ सिंगल प्लेयर इन द मार्केट, so your prices of that product will be high. But if there are many players in the market of the same product, then the prices will kept automatically low. आप लोग एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं कि कंपटीशन, जैसे कि आप टी ब्रांड की बात करें, चाय की बात करें, तो चाय के केस में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं मार्केट में एंड देयर आर एन नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स और प्रोड्यूसर्स ऑफ टी इन द मार्केट, सो कंपटीशन इज हाई. तो आप एंटी प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप को फॉलो करेंगे. यहाँ पे जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा वैसे वैसे प्राइसेस क्या होंगे, कम होंगे. जैसे जैसे कंपटीशन कम होगा वैसे ही प्राइस क्या होंगे, बढ़ेंगे.
ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, एयरटेल इनिशियली kept high prices for its mobile services, but with entry of Vodafone Idea, Reliance Jio, the prices for various mobile services have been slashed. शुरुआत में एयरटेल सिंगल कंपनी थी जो अच्छे नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा था मार्केट में, बट with the entry of different type of network providing companies, the prices of Airtel were low. Last factor which we are going to discuss that have an impact on the price of product is brand and quality of product. Yes, मार्केट में कंपटीशन कितना भी हो जाए, अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बाकी कॉम्पिटिटर्स के क्वालिटी से बेटर है, देन they are ready to pay extra amount for your product. A higher brand value and better quality corresponds to a higher product price in the market. आपके ब्रांड की वैल्यू अगर ज़्यादा है एंड आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर बेटर है, देन you can put a high price for your product in the market. For example, a simple jewelry store in the Chandni Chowk market of Delhi will set price of its ornament based on the cost of gold and silver, making charges. Okay, तो अगर कोई भी ऑर्डिनरी शॉपकीपर है जो गोल्ड के ऑर्नामेंट सेल करता है, तो वो गोल्ड के प्राइस के बेसिस पे और मेकिंग चार्जेस के बेसिस पे अपने प्राइसेस को सेट करेगा. बट अ हाई एंड ज्वेलरी स्टोर्स लाइक कल्याण ज्वेलर्स, तनिष्क ज्वेलर्स, okay, there are some other players also in the gold jewelry market, so they put their price higher as compared to the local market shopkeepers, okay, because they charge to the customer for their brand value and for the reputation in the market, and people are also ready to pay extra amount for the reputation of their company. Price must be supporting other element of the marketing mix. Too high or too low price of a product could mean lost sale of organization. अगर आप बहुत ज़्यादा प्राइस रखते हैं अपने प्रोडक्ट के, then people may not be that much eager to buy your product. हो सकता है आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज करने में इंटरेस्ट ना शो करें. और अगर आपने बहुत ज़्यादा प्राइस लो रखा, तो ये हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट की इमेज कस्टमर के माइंड में लो एंड पे इस्टेब्लिश हो जाए. ठीक है, कस्टमर का परसेप्शन जो है वो काफ़ी मैनी ऑफ द टाइम्स इस बात से डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस क्या है. अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस बहुत लो है, तो कस्टमर का परसेप्शन ये भी बन सकता है कि दैट यू आर नॉट ऑफरिंग अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. So these are the factors that one should keep in mind whenever he is going to decide about the price of his product. Okay, so this is all for today's session, guys. If you are new on the channel, you can subscribe it, that whenever new video is uploaded, you will be notified on your screen. And if you like this video, please click on the like button and share it with your friends. In next video, we will discuss about objective of pricing and how pricing is important for a company and for an individual. Till then, take care. Thank you.